Hello viewers, once again I welcome in the course Transportation Engineering. So in the last video we have seen about the how to design the super elevation, and before that I have discussed the what is the effect of centrifugal force on the horizontal curve. So that there are two effects we have discussed in the last video. That is, one is to there is a chances or there is a tendency to overturn the vehicle due to this centrifugal force, and there is a chances of lateral skidding. And after that we have discussed that the condition to avoid this overturning and skidding. And after that we have discussed how to design the super elevation and what do you mean by the super elevation. So today I will discuss the what is extra widening and why do we provide, and what are the aims or objective to provide the extra widening, and then what is the transition curve and how to compute the length of transition curve. So let us start. And before that I will discuss one thing, that is what do you mean by the ruling minimum and absolute minimum radius of horizontal curve. So what is ruling minimum and absolute minimum radius curve? So let us say we have discussed the relationship in the last video, that is E plus F is equal to V square by GR, or E plus F is equal to capital V square divided by 127 into R. So here ruling minimum can be computed as ruling radius, that is equal to V square divided by E plus F into G is the ruling minimum radius. Or in terms of kilometer, if I compare, here the velocity is in kilometer per hour and here the velocity in meter per second. So here small v is the velocity in meter per second. The value of E is maximum value of E max, that is for plane and rolling terrain it is 0.07, and the value of F is equal to coefficient of lateral friction 0.15, and G is equal to 9.81 meter per second square. Similarly, here R ruling can be written as capital V square divided by 127 into E plus F. Here velocity in kilometer per hour. Velocity is in this velocity in kilometer per hour. Here the velocity in meter per second. We have to take the value of E is maximum value or design value of the super elevation, and F is the coefficient of lateral friction, that is 0.15. With the help of this we can compute the ruling minimum radius. Similarly, the absolute minimum radius can also be computed. So absolute minimum radius can be computed as small v dash square divided by E plus F into G. So this is the absolute minimum radius, where v dash is the minimum velocity in meter per second. Or similarly we can write this expression in terms of, if we take the velocity in kilometer per hour, so absolute minimum radius can be computed as capital V dash square divided by E plus F into G, where capital V dash is the minimum velocity in kilometer per hour. So with the help of this we can compute the ruling minimum radius and absolute minimum radius. These two are same, but in this expression here I have taken the minimum velocity in meter per second, and in this expression I have taken here v dash square divided by 127. I'm very sorry, here 127 because the expression is v square, so our ruling minimum is 127 into E plus F. 127 E plus F. Now I'm going to discuss the extra widening.
So extra widening, what is the aim of this extra widening? Extra widening. So extra widening क्यों प्रोवाइड किया जाता है? So extra widening का सबसे मेन एम जो है कि वो क्या है कि जब दिस इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग. जनरली क्या होता है कि जैसे आप कर्व में जब आप जाओगे तो क्या होता है कि रेडियस जो है आप जैसे स्ट्रेट पोर्शन से जैसे कर्व में गए तो रेडियस जो था पहले इनफाइनाइट से हमारा क्या था, सर्टेन रेडियस था, और फिर ये स्ट्रेट पोर्शन. तो जनरली जो होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो पहला उसका रीजन है कि टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग. क्या होता है कि जैसे ये जा रहा है हमारा व्हीकल और ये एक्सेल है फ्रंट और रियर, तो फ्रंट एक्सेल को अगर यहाँ पे मोड़ा तो जो हमारा रियर एक्सेल है वो ये सर्टेन नहीं है कि उसी पाथ के लॉन्ग मूव करे ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस. तो उसी चीज को मैंने बताया कि जैसे जो है ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस जो हमारा जो फ्रंट एक्सेल है और रियर एक्सेल का जो पाथ होगा वो सेम नहीं होगा. जैसे ये मोड़ना चाहेगा तो अगर हमारे पास जो सर्टेन विड्थ है, अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमने नहीं प्रोवाइड किया तो देयर इज अ चांसेस कि जो हमारा जो रियर एक्सेल है वो हमारा क्या हो जाएगा, रोड से बाहर हो जाएगा. इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर्टेन एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है आपको प्रोवाइड करना होगा आपको. दूसरा जो रीजन है उसका कि आपका जो लेटेस्ट से कि आपकी जो ये हमने जो कर्व हमने डिजाइन किया है उसका हमने स्पीड रखा है कि हाँ सर्टेन अलाउबल स्पीड है कि ये स्पीड से जाना है. लेकिन अगर उस स्पीड से भी ज्यादा अगर हमने जो हमारी स्पीड जो व्हीकल की है वो हमारे डिजाइन स्पीड से ज्यादा होगा, देन व्हाट विल हैपन. हमने बताया था कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है P इज इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. सो अगर डिजाइन स्पीड से भी ज्यादा हमारी स्पीड होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर से एक्ट करना स्टार्ट होगा इस डायरेक्शन में, और ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा व्हीकल को देयर इज अ चांसेस कि लैटरल स्किडिंग का चांस रहेगा. तो हमने अगर एक्स्ट्रा वाइडनिंग एक्स्ट्रा विड्थ अगर नहीं प्रोवाइड किया है तो एक बार फिर हमारा पूरा का पूरा जो व्हीकल है वो रोड से बाहर हो सकता है. इसलिए हम लोग टू अवॉइड द लैटरल स्किडिंग के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग को प्रोवाइड करेंगे. फिर और सारे भी बहुत सारे रीजन है कि टू अवॉइड जैसे है कि हमारा एस्थेटिकली गुड भी दिखना चाहिए, और फिर तो उसी सारी चीज को हमने ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है कि व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द एम और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज द फर्स्ट टू अवॉइड द ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस. और रिजिडिटी ऑफ ट्रैकिंग मैंने बताया कि पाथ ट्रैवर्स बाय फ्रंट एक्सेल इज नॉट सेम एज पाथ ट्रैवर्स बाय द रियर एक्सेल. दूसरा क्या है, टू काउंटरैक्ट ट्रांसवर्स स्किडिंग. जो मैंने बताया कि स्पीड ऑफ द व्हीकल अगर डिजाइन स्पीड से ज्यादा हो गई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हो सकता है कि देयर इज अ चांसेस ऑफ लैटरल स्किडिंग और ट्रांसवर्स स्किडिंग ऑफ द व्हीकल. उसी तरह टू इंक्रीज विजिबिलिटी, जितनी ज्यादा वाइडनिंग रहेगी, जितना विड्थ रहेगा पेवमेंट का, तो हमारी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी रहेगी. और दूसरा चीज है कि साइकोलॉजिकल टेंडेंसी व्हाइल ओवरटेकिंग ऑपरेशन, ये भी हमारा अच्छा रहेगा. सो कैसे ये निकालेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग? सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैन बी कंप्यूटेड. एक्स्ट्रा वाइडनिंग अब हेडिंग डालते हैं कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैसे हम लोग निकालेंगे. सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग, इसको हमने WE से डिनोट किया है. एक्स्ट्रा वाइडनिंग that is the sum of mechanical widening plus psychological widening. It is the sum of mechanical widening को हमने WM से दिखाया है और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग को WPS से हमने दिखाया है. तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा वो सम होगा किसका सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग और आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग. सो ये मैकेनिकल वाइडनिंग जो होगा इज ड्यू टू द ऑफ ट्रैकिंग के वजह से इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं. सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा, मैकेनिकल वाइडनिंग का एक्सप्रेशन जो आएगा दैट इज इक्वल टू NL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होगा V बाई स्क्वायर 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल R. सो यहां से हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाल सकते हैं. टोटल जो है वो हमारा हो जाएगा NL स्क्वायर बाई 2R. यहां पे आप देख सकते हो कि NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V बाई 9.5 इंटू R. ये वाला टर्म, ये पोर्शन जो है हमारा क्या है, ये पोर्शन जो है हमारा मैकेनिकल वाइडनिंग का है और ये पोर्शन जो है हमारा किसका है, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का है. अब यहाँ पे क्या है, N जो है हमारा नंबर ऑफ लेन है, N जो है हमारा स्मॉल n जो है यहाँ पे
स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ लेन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ लेन, और फिर एल जो है आपका, एल इज द लेंथ ऑफ व्हील बेस, लेंथ ऑफ व्हील बेस, जो जनरली जो आया, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम लोग 6 मीटर लेंगे। आर जो है हमारा रेडियस इन मीटर, और उसी तरह यहां पे वी जो है वो वेलोसिटी या स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रहे कि वी जो हमारा यहाँ पे है वो किलोमीटर पर आवर में है, और रेडियस तो हमने बताया कि मीटर में होगा। सो इस टर्म से हम लोग जो है मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के सम को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो यहीं पे जो है आपका जो होगा कि जो एल स्क्वायर बाई 2r जो है, जो मैकेनिकल वाइडनिंग में एक्सप्रेशन आया है, एल स्क्वायर बाई 2r को हम लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे ऑफ ट्रैकिंग। क्या बोलेंगे, ऑफ ट्रैकिंग। एल स्क्वायर बाई 2r जो यहाँ पे जो मैकेनिकल वाइडनिंग में जो एक्सप्रेशन आया है, एल स्क्वायर बाई 2r को हम लोग ऑफ ट्रैकिंग भी बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है। अब फॉर सिंगल लेन, अगर हमारा लेन सिंगल है, फॉर सिंगल लेन के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग दैट इज द सम ऑफ ओनली मैकेनिकल वाइडनिंग। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है वहां पे नहीं होगा, साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो होगी वो सिंगल लेन के लिए नहीं होगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा दैट इज द सम ऑफ ओनली, दैट इज इक्वल टू द मैकेनिकल वाइडनिंग। और हम लोग यहाँ पे या तो लिख सकते हैं कि एक लेन के लिए जो हमारा होगा दैट इज इक्वल टू द एल स्क्वायर बाई 2r ऑफ ट्रैकिंग के बराबर होगा। अब जब लेन हमारा 2 से ज्यादा हो, फोर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब हमारा जो होगा, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा दैट इज द सम ऑफ मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, और एन एल स्क्वायर बाई 2r प्लस v बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r। बस ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको क्या याद रखना है, यूनिट का बिल्कुल ध्यान में रहे, किसको किस चीज में आपको पुट करना है। यहाँ पे एल जो है लेंथ ऑफ व्हील बेस क्वेश्चन में दिया रहा है तो ठीक है, नहीं तो 6 मीटर हम लोग लेंगे। आर जो है रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, ये स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। यही बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, ये जो स्पीड है, स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में हमें रखना है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, एन इज द नंबर ऑफ लेन। जैसे 7 मीटर विड्थ है अगर, तो कितने लेन हो गए, जनरली जो होते हैं एक लेन के विड्थ जो हो गए वो 3.5, तो हमारा जो n इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3.5 मतलब कि 2 हो गया। अगर 14 मीटर है तो 14 डिवाइडेड बाई 3.5, तो वहां से 4 लेन हो गए। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ लेन्स कभी कभी क्वेश्चन में ना देके वो विड्थ देते हैं, ठीक है। सो कैसे इसको प्रोवाइड करेंगे, सो लेट अस से कि ये हमारा जो है स्ट्रेट पोर्शन है, ये स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व है, और फिर उसके बाद क्या है, हमारा ट्रांजिशन कर्व है, फिर हमारा ट्रांजिशन कर्व है, और फिर उसके बाद जो है सर्कुलर कर्व है। सर्कुलर कर्व हमने प्रोवाइड किया इस तरह, और फिर सिमिलरली ये हमारा ट्रांजिशन कर्व है, और फिर स्ट्रेट पोर्शन है। ये वाला पोर्शन जो है हमारा, इतना पोर्शन जो है हमारा जो है वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। फिर जो यहां से यहां तक जो पोर्शन है वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन कर्व है, और ये यहां से यहां तक जो है ये हमारा सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस r है। और फिर सेम इधर भी ये पोर्शन जो है हमारा स्ट्रेट है, ये ट्रांजिशन है। तो वाइडनिंग कहां पे प्रोवाइड करेंगे, सो वाइडनिंग जो है कुछ इस तरह प्रोवाइड किया जाएगा। वाइडनिंग दोनों तरह से प्रोवाइड हम लोग कर सकते हैं, या तो बोथ साइड, या तो हम लोग सिर्फ इनर एज पे, दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस। तो ये जो है WE जो है WE बाई 2, यहां इधर भी WE बाई 2, और ये हमारा विड्थ है ऑफ द पेवमेंट। सो पूरी जो विड्थ हो जाएगी वो W प्लस WE। सो वो प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो हम लोग या तो हाफ ऑफ पोर्शन जो हमने टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकाली है, वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का हाफ जो है राइट साइड और फिर इनर साइड में हमने बोथ साइड प्रोवाइड कर दिया। तो अगर हमारी रेडियस ऑफ द कर्व, इफ हमारी रेडियस ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन 300 मीटर, नो नीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर हमारी रेडियस ऑफ द कर्व जो है वो 300 मीटर से ज्यादा है तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर रेडियस ऑफ द कर्व, इफ रेडियस ऑफ द कर्व इज इन बिटवीन 50 to 300 मीटर, देन प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग
एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट बोथ साइड्स। अगर हमारी रेडियस ऑफ द कर्व, इफ रेडियस ऑफ द कर्व इज लेस देन 50 मीटर, then provide extra widening at the inner side. So provide extra widening at inner side only. सिर्फ inner side में ही हम प्रोवाइड करेंगे, inner side only. So ये कुछ पॉइंट्स जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने बताया कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग कब प्रोवाइड करेंगे और कितनी वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, और जो है सिंगल लेन के लिए मैंने बताया है कि साइकोलॉजिकल वाइडनिंग जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा सिंगल लेन के लिए, बिकॉज जब हमारा सिंगल लेन ही है तो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन लेन हमारी 2 से ज्यादा या 2 के बराबर होगा तो हम लोग जो है मैकेनिकल वाइडनिंग का भी कंट्रीब्यूशन होगा और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का भी कंट्रीब्यूशन होगा इन एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब कैसे हम लोग वाइडनिंग प्रोवाइड करेंगे? सो दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व, कि अगर हमारी रेडियस ऑफ द कर्व जो है वो 300 मीटर से ज्यादा है, देन देयर इज नो नीड टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर रेडियस की वैल्यू 50 टू 300 मीटर के बीच में है, देन आपको वाइडनिंग प्रोवाइड करना है बोथ साइड में। लेट अस से कि हमारी वाइडनिंग की वैल्यू जो आई है वो 0.04 मीटर आई है, तो 0.02 मीटर एक साइड और 0.02 मीटर अदर साइड में हमें प्रोवाइड करना है। अगर रेडियस की वैल्यू 50 मीटर से कम है, देन आपको ओनली जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करना है, इनर साइड में ही आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमने समझ लिया, क्या एम था, कैसे प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा। तो इसमें इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे लास्ट में वीडियो के। उससे पहले ट्रांजिशन कर्व समझ लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व जो क्या होता है, सो ट्रांजिशन का मतलब ही है ट्रांजिशन, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। सो ट्रांजिशन कर्व क्या है कि जो ट्रांजिशन कर्व इज द कर्व इन बिटवीन द स्ट्रेट पोर्शन एंड सर्कुलर कर्व के बीच में हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। मतलब स्ट्रेट पोर्शन जब रहेगा तो हमारी रेडियस कितनी रहेगी? इनफाइनाइट। और सर्कुलर कर्व रहेगा देन हमारी रेडियस कितनी रहेगी? रेडियस आर। मतलब जब रेडियस इंफिनिटी है, सॉरी, जब स्ट्रेट पोर्शन है तो रेडियस हमारी इनफाइनाइट है, और जब हमारा सर्कुलर पोर्शन है तो रेडियस क्या है? हमारा आर है। तो जब हमारी रेडियस इनफाइनाइट टू आर के तरफ जाएंगे, इन बिटवीन जो है हमें ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है। उसका एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ टू प्रोवाइड दिस ट्रांजिशन कर्व? सो मैंने सबसे पहले इसको लिखा है, इट इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड सर्कुलर कर्व सो दैट रेडियस चेंजेस ग्रेजुअली। अगर डायरेक्टली आप स्ट्रेट पोर्शन से सर्कुलर कर्व में चले जाओगे तो क्या होगा कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज्यादा लगेगा कि आपको देयर इज ए चांसेस ऑफ ओवरटर्निंग और स्किडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन बिटवीन द स्ट्रेट पोर्शन और सर्कुलर पोर्शन के बीच में हम लोग जो रेडियस रखते हैं, जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये हमारा काउंटरैक्ट हो जाए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So what is the objective to provide the transition curve? To gradually introduce, डायरेक्टली हमने इंट्रोड्यूस नहीं करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ग्रेजुअली हमने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन बिटवीन स्ट्रेट एंड सर्कुलर। अब अगर डायरेक्टली आप हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट पोर्शन है और फिर सर्कुलर रहेगा, देन देयर इज ए बहुत आपका जो होगा वो सडन जर्क आएगा, जो दैट विल बी द डिस्कम्फर्ट फॉर द पैसेंजर एज वेल एज फॉर द ड्राइवर। और तो क्या होगा कि टू अवॉइड सडन जर्क को हमें अवॉइड करना है, तो हम लोग ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं। और ये जर्क क्या होता है? सो जर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन क्या होगा? अभी मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो mv²/r है, तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v²/r। तो v²/r मतलब कि हमारा जैसे हम लोग जैसे स्ट्रेट पोर्शन से हम लोग जैसे सर्कुलर पोर्शन में जा रहे हैं, तो हमारा जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है v²/r, स्ट्रेट पोर्शन में रेडियस इनफाइनाइट है, मतलब कि हमारा एक्सीलरेशन 0 है, और 0 से डायरेक्टली हमारा v²/r आ जा रहा है। तो इन बिटवीन जो हम लोग ट्रांजिशन कर्व को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने बताया है कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो होगा वो v²/r और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। स्ट्रेट पोर्शन में सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन 0 होगा, बिकॉज r की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ये वैल्यू 0 हो गई, और सर्कुलर कर्व में हमारा v²/r होगा। अगला एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द ट्रांजिशन कर्व टू एनेबल द ड्राइवर टर्न द स्टीयरिंग ऑफ व्हीकल ग्रेजुअली फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी। वही चीज है, टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग टू इंप्रूव एस्थेटिक अपीयरेंस। एस्थेटिक अपीयरेंस भी अच्छा रहेगा, कि आपको देखने में भी सही लगेगा। अब कैसे इसके लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को हम लोग निकालेंगे? सो हेडिंग डालते हैं लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व।
सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होगा वो हम लोग 3 क्राइटेरिया से निकालेंगे और इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हम लोग लेंगे। सो पहला, on the basis of rate of change of centrifugal acceleration और rate of radial acceleration। यहां पे अभी हमने बताया कि C जो हमारा था यहाँ पे जर्क है जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है dA/dt। अब यहां पे सोचिए, आपका कर्व कुछ इस तरह का था कि कुछ पोर्शन हमारा जो है बिल्कुल स्ट्रेट है और स्ट्रेट के बाद क्या है हमारा ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन के बाद फिर हमारा सर्कुलर कर्व है। ये हमारा सर्कुलर कर्व है बिल्कुल, ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है, दिस इज स्ट्रेट। फिर हमारा क्या है ट्रांजिशन है इन बिटवीन सर्कुलर कर्व और स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व, ये हमारा ट्रांजिशन है। और फिर हमारा ये जो है ये हमारा सर्कुलर कर्व है जिसकी रेडियस r है, दिस इज सर्कुलर। अब यहां पे देखो, मैंने बताया है बार बार, मैंने इसको बोला है लास्ट वीडियो में बोला था कि स्ट्रेट पोर्शन में हमारी r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और इनफाइनाइट से हम लोग जब रेडियस r की तरफ जाएंगे तो उसके बीच में एक कर्व होगा जिसको ट्रांजिशन कर्व बोला जाता है। सर्कुलर में रेडियस कितनी होगी r होगी, मतलब कि स्ट्रेट पोर्शन में जो आपका सेंट्रीफ्यूगल जो एक्सीलरेशन होगा या रेडियल एक्सीलरेशन, जो मैंने बोला है कि रेडियल एक्सीलरेशन जो होगा a = v²/r, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 बिकॉज रेडियस इनफाइनाइट है। और सर्कुलर कर्व में जो होगी हमारी एक्सीलरेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी v²/r की वैल्यू। तो क्या चेंज होगा, तो c = क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या, जब हमारी रेडियस सर्कुलर कर्व में जब r था तो हमारा एक्सीलरेशन क्या था, जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो दैट इज इक्वल टू v²/r। सो v²/r, और जब हमारी स्ट्रेट पोर्शन में r इनफाइनाइट है तो ये 0 और डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, तो टाइम को हम लोग लिख सकते हैं क्या ls/v, बोलो लेंथ, ls जो है हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाई v, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको ls/v। सो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं c = vq/ls × r। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या हो जाएगा vq/c × r। पहला तो हमारा जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व का एक्सप्रेशन मिल गया vq/c × r। अब सब चीज को समझो क्या है यहां पे, ls जो है वो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर, v जो है आपका स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, r जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व, r जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, ls तो है हमारा, और जो यहां पे c जो है वो क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल रेडियल एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट जो इसकी होगी मीटर पर सेकेंड क्यूब, और c की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v। अब यहां पे जो v है वो आपका इन किलोमीटर पर आवर होगा, इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखें, और c की वैल्यू जो होगी वो इन बिटवीन 0.5 टू 0.8 के बीच में होगा। 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v। तो इससे हम लोग एक चीज का ध्यान बिल्कुल है कि जो पहला जो कंडीशन है कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन जो हम लोग ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे दैट इज द ls = vq/c × r। यहां पे जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में ही रहेगा और r जो है वो रेडियस ऑफ द कर्व है, c जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन की यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड क्यूब में, और ये जो c निकाला जाएगा दैट इज इक्वल टू 80/75 प्लस v, और वो जो v होगा दैट इज आपको पुट ही करना है किलोमीटर पर आवर में। ये आपका जो एक्सप्रेशन इसी तरह है कि आपके जो यहाँ पे जो v है वो किलोमीटर पर आवर में होगा, और यहाँ पे जो v जो है जो ls = vq/cr, ये v जो होगा यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूं vq/cr जो है
ये v जो होगा दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, और ये c जो है वो मीटर पर सेकेंड क्यूब, और r जो है रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर। अब वो c की वैल्यू जो होगा वो 0.5 टू 0.8 के बीच में होगा, और उसे निकाला कैसे जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन को। और यहां पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में आपको ही रखना है। तो ये तो पहला कंडीशन हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन से हम लोग कैसे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे। लेकिन मैंने बोला कि 3 कंडीशन होगा। दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पेवमेंट को जो है वो 2 तरह से रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन ऑफ द पेवमेंट कैन बी डन बाय 2 टाइप्स, आइदर अबाउट द इनर एज और या तो अबाउट द सेंटर। सो क्या होता है ये, जैसे लेट अस से कि हमारा पेवमेंट है और ये हमारा पेवमेंट है, लेट अस से कि ये हमारा पेवमेंट था, तो अबाउट द इनर एज जो है कल हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा कि ये हमारा जो है दिस इज द इनर एज, ये हमारा इनर एज है, इनर एज, और ये हमारा आउटर एज है, दिस इज आवर आउटर एज। पेवमेंट को हमने रेस कर दिया है, और रेस का हाइट भी हमने बताया था कि ये हमारा अगर कैम्बर ई था और ये हमारा कैपिटल ई है, और ये विड्थ ऑफ द पेवमेंट है बी, तो हमने बोला था कि जहां यहां पे रेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई इंटू बी। अगर सेंटर इनर एज के अगर रोटेशन अबाउट द इनर एज अगर हुआ है, रोटेशन अबाउट इनर एज। अब रोटेशन अबाउट इनर एज में जो आपका राइज जो रेज होगा आपका, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई इंटू बी। इसका क्या आपका है, यहां पे क्या है कि आपका जो यहां पे जो है सबसे बड़ा चीज है कि यहां पे जो आपका जो सेंटर लाइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सेंटर लाइन विल चेंज, जो आपका इनर एज के अबाउट। सो जब पेवमेंट को जो हम लोग रोटेट करेंगे अबाउट द इनर एज, तो सेंटर लाइन तो चेंज नहीं होगा। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा जो एडवांटेज यहाँ पे क्या होगा कि एडवांटेज है कि अगर हम लोग इसे जो है अगर यहाँ पे सेंटर लाइन विल चेंज, और दूसरा चीज क्या है कि हमें यहाँ पे फिलिंग करना होगा, बिकॉज फिलिंग जो है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इसका, फिलिंग इज रिक्वायर्ड। तो फिलिंग जैसे करेंगे तो कॉस्ट हमारा एक इशू हो जाएगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है यहाँ पे जो एडवांटेज क्या है इसका कि व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द इनर एज, सो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज, नो प्रॉब्लम ऑफ ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। सो इस तरह का रोटेशन हम लोग कहां पे करेंगे, जहां पे हमारा हेवी रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल एरिया जहां पे है, तो वहां पे हम लोग जो है जनरली पेवमेंट को रोटेट करेंगे अबाउट द इनर एज, बिकॉज वहां पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा जो है कि व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट दी सेंटर लाइन, ये हमारा पेवमेंट है, तो इसमें क्या होगा, व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट दी सेंटर लाइन, जब पेवमेंट हमारा रोटेट कर रहा है अबाउट दी सेंटर लाइन, लेट अस से कि ये दिस इज द सेंटर, तो यहां पे क्या होगा कि हमारा सेंटर लाइन चेंज नहीं होगा, आवर सेंटर लाइन विल नॉट चेंज। ये आपका हो जाएगा E/2, ये भी E/2, ये आपका अगर हो गया E, सो दिस इज ऑल्सो E अबाउट दी सेंटर लाइन रोटेशन अगर हुआ है। तो इस पे क्या क्या हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो सेंटर लाइन विल नॉट चेंज। अब जैसे रोटेट करोगे तो जितना हमारा कटिंग है उतना ही फिलिंग होगा, सो कटिंग इज इक्वल टू फिलिंग, सो हमारा कॉस्ट यहां पे बच जाएगा। और इस तरह का जो है कटिंग जो होगा वो फिलिंग के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है आपका कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम थोड़ा सा होगा, ड्रेनेज प्रॉब्लम। तो इसे इस तरह का जो सेंटर लाइन का रोटेशन है हम लोग कहां पे करेंगे, तो हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे हिली रीजन में, इन
इन हिली रीजन, जहां पे हमारा क्या है कि कटिंग जो है वो फिलिंग बैलेंस कर देगा। तो इन हिली रीजन में जनरली हम लोग रोटेशन ऑफ द पेवमेंट अबाउट द सेंटर लाइन करते हैं। तो जब व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द इनर एज और सेंटर लाइन, देन हाउ टू कंप्यूट द, कैसे कंप्यूट करेंगे हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। ये थोड़ा सा हमने बता दिया कि क्या इसका मकसद है, क्यों ऐसे रोटेट करते हैं। सो पहला हम लोग केस लेते हैं इसमें, फिर केस फर्स्ट, व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड, when pavement is rotated, when pavement is rotated about inner edge, जब इनर एज के अबाउट जो है हम लोग पेवमेंट को रोटेट करेंगे, देन हाउ डू वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो कैसे हम लोग ट्रांजिशन कर्व को हम लोग निकालेंगे। सो ये हमारा जो है वो पेवमेंट है, और यहां पे हमने एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी कंसीडर कर लिया है कि लेटेस्ट से एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी हमने ले लिया है। सो ये हमारा क्या है, इनर एज, दिस इज आवर इनर एज, और ये हमारा आउटर एज है, और ये हमारी जो है रेज हुआ ये। तो यहां पे जो ये वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, जो राइज हमारा जो राइज होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जो हमारा कैम्बर होगा E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू प्लस ई। और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। सो यहां पे लेट अस से कि 1/n जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/n इज इक्वल टू E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई ये LS, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व LS। सो यहां से LS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई इंटू N। सो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू N इंटू E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, वेयर जो E जो है आपका सुपर एलिवेशन है, W जो है विड्थ ऑफ द पेवमेंट, और W इज जो है एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, और N जो है वो 1/n को बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन, रेट ऑफ। तो ये इसकी वैल्यू जो होगी 1/n की वैल्यू 1/n इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज 1/150 फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। फिर 1/n जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन जो होगा वो 1/100 फॉर बिल्ट अप एरिया, और 1/n इज इक्वल टू 1/60 फॉर हिली एरिया। मतलब n की वैल्यू जो होगी वो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 150 लेंगे, बिल्ट अप एरिया के लिए 100, और हिली एरिया के लिए हम लोग क्या लेंगे, 60 लेंगे। ये तो जब हमारा पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द इनर एज। अगर हमारा पेवमेंट रोटेट किया गया अबाउट द सेंटर लाइन, सो व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, तब क्या होगा हमारा वैल्यू। सो व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट सेंटर लाइन, सो पेवमेंट जब सेंटर लाइन के अबाउट जब रोटेट होगा तो हाफ पोर्शन जो होगा, जो हमारा क्या है कि टोटल रेज ऑफ द पेवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। यहां पे अगर हम बनाए, व्हेन पेवमेंट इज केस टू, when pavement is rotated about center line, सेंटर लाइन के अगर अबाउट हम रोटेट करें तो क्या होगा, ये हमारा इसके अबाउट अगर रोटेट हो तो ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये पोर्शन जो हो जाएगा हाफ, और ये पोर्शन भी हाफ। सो ये कितना हो जाएगा, W प्लस डब्ल्यू ई बाई 2 इंटू ई, और ये सेंटर लाइन तो सेम ही रहेगा जब सेंटर जो हम रोटेट करते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल राइज हुआ है, टोटल रेजिंग ऑफ पेवमेंट with respect to raising of pavement
with respect to about the center, with respect नहीं, about the center, raising of pavement about the center line, about center जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू। सो यहां से फिर हम लोग लगाए कि 1/n इज इक्वल टू ई इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू डिवाइडेड बाई एल एस। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, एल एस इज इक्वल टू ई इंटू एन इज इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू। when pavement is rotated about center, when pavement is rotated about center line। सो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा हमारा जो है वो एम्पिरिकल रिलेशन, एम्पिरिकल रिलेशन से हम लोग कैसे निकालेंगे। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू 2.7 कैपिटल बी स्क्वायर बाई आर, या तो एल, ये जो है आपका प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए जो होगा ये होगा, और फिर एल एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एल एस इज इक्वल टू वी एल। बट यहां पे जो आपको वेलोसिटी जो है वो आपको किलोमीटर पर आवर में हेयर। सो फॉर ये दिस इज फॉर हिली रीजन, फॉर हिली रीजन के लिए ये हमारा है। सो फॉर हिली टेरेन के लिए जो होगा एक्सप्रेशन आपका वो वी स्क्वायर बाई आर, और फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए जो आपका होगा वो 2.7 वी स्क्वायर बाई फॉर हिली टेरेन। सो हेयर जो है आपका वेलोसिटी जो है वी इन किलोमीटर पर आवर में, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रहे। उसके बाद जो हमारा ट्रांजिशन कर्व जो होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो होगा, एल एस की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम ऑफ द अबव 3 केसेस। जो मैक्सिमम जो होगा हमारा, मतलब कि एल एस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ क्या क्या, वी क्यू बाई सी आर, या ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, और या तो इसमें अगर सेंटर या जो होगा या ई इंटू एन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू, ये दूसरा कंडीशन है। या तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर बाई आर और वी स्क्वायर बाई आर। इसमें से जो मैक्सिमम होगा, ये पहला कंडीशन के लिए था, ये दूसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा। अब ये जो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है हमारा कि व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द इनर एज और व्हेन पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर, तो जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा उसमें से कोई एक वैल्यू हम लोग निकालेंगे। फिर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए ये वाला वैल्यू यूज होगा, हमारा हिली टेरेन के लिए वी स्क्वायर बाई आर होगा। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, तो इस जो थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है कि 2 लेन रोड विथ डिजाइन स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस जो है आपकी 480 मीटर। स्पीड जो है वो कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर में पर सेकंड में चेंज कर लीजिए, 80 डिवाइडेड बाई 3.6, तो ये वैल्यू जो आ गया 22.22 मीटर पर सेकेंड। डिजाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स ट्रैफिक। आपको सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है। कल ही की तरह क्वेश्चन, कल जो लास्ट वीडियो में हमने डाला था, तो पहला डिजाइन का सबसे पहला पार्ट क्या था कि फॉर मिक्स ट्रैफिक जो स्पीड है, डिजाइन स्पीड, उसका आपको 75% लेना है, एंड नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। सो E इज इक्वल टू 0.75 V का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई G इंटू R। सो यहां से देखो क्या आ रहा है E की वैल्यू। सो E इज इक्वल टू 0.75 इंटू V की वैल्यू जो है 22.22 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है 480 मीटर। तो यहां से वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.0589। ये वैल्यू जो आ गई 0.0589। तो ठीक है 0.058 हमारी वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू जो है वो 0.07 से कम होना चाहिए। तो ठीक है ये वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल है। सो ई की वैल्यू जो है वो कितना हो गया 0.059। ये हमारा सुपर एलिवेशन हो गया, ई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब बोल रहा है कि बाई हाउ मच शुड द आउटर एज ऑफ द पेवमेंट बी रेज्ड with respect to the center line if the pavement is rotated with respect to the center line and the width of the pavement at the horizontal curve is 7.5 मीटर। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो विड्थ है हमारा वो 7.5 मीटर दिया हुआ है और हमारा ये पेवमेंट है, इसको सेंटर लाइन के अबाउट जो रोटेट किया गया है। तो बोला जा रहा है कितना रेज होगा। अभी तो मैंने बताया कि जो रेज जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये पोर्शन जो हो जाएगा वो E/2, ये भी E/2, ये भी E/2 और E/2 जो होगा वो कितना हो जाएगा E/2 इज इक्वल टू कितना रेज हो जाएगा, तो E इंटू डब्ल्यू प्लस WE/2 या तो EW/2 जब एक्स्ट्रा वाइडनिंग नहीं है दिया हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल ई इंटू W/2। स्मॉल ई हमने निकाल लिया है 0.059 और विड्थ ऑफ द पेवमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है 7.5। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 2 जब पेवमेंट जो है रोटेट किया गया सेंटर लाइन के अबाउट। अगर इनर हेज होता तब कितना हो जाता, तो E इंटू डब्ल्यू या E इंटू डब्ल्यू प्लस WE। तो यहां पे हो गया 0.059 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 2। सो ये वैल्यू जो हो गई आपकी 0.22 मीटर, इतना रेस किया गया है। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा कुछ था नहीं, बस ये आपका कितना रेस किया गया है आपको, तो वो आपका 0.22 मीटर। दूसरा क्वेश्चन जो है जो हमने लिया है कि कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर ए पेवमेंट ऑफ विद इन 7 मीटर ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस। जो सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लो। इफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस यहाँ पे जैसे देखिए चेंज कर दिया 7 मीटर, अगर नहीं दिया रहता तो 6 मीटर लेते। स्पीड जो है वो आपका कितना है 70 किलोमीटर पर आवर और 7 मीटर विड्थ है, तो नंबर ऑफ लेन कितना हो गया 7 डिवाइडेड, मान लिया कि पर लेन का विड्थ 3.5 है तो 2 लेन हो गया, नंबर ऑफ लेन 2। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैकेनिकल वाइडनिंग प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। अब साइकोलॉजिकल अगर एक लेन रहता तो ये नहीं प्रोवाइड करते, तो मैकेनिकल वाइडनिंग क्या हो जाएगा NL² 2R प्लस कैपिटल V बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R। अब यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि मैकेनिकल वाइडनिंग जो है स्पीड पे नहीं डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ये वाला जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग में स्पीड को किलोमीटर पर आवर में ही रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू 2 इंटू L7² डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। R की वैल्यू 250 प्लस V जो है 70 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 250। अब निकाल लो कितना आ रहा है एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज इक्वल टू सम ऑफ कितना हो गया 2 इंटू 49 2 इंटू 7² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 250 प्लस नहीं अलग अलग निकाल लो पहले। मैकेनिकल वाइडनिंग की वैल्यू आई 2 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 500। सो ये वैल्यू आ गई 0.196। मैकेनिकल वाइडनिंग जो आई वो कितनी आ गई 0.196 प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कितनी हो गई 70 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 250। ये वैल्यू आ गई 0.466 आपका जो है। तो यहां से कितनी आ गई 0.196 प्लस 0.466। सो तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो आ गया 0.662। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज 0.662 मीटर, ये आपकी एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। अब यहीं पे क्वेश्चन में बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग। तो ऑफ ट्रैकिंग मैंने बताया कि क्या था L²/2R जो है हमारा ऑफ ट्रैकिंग है, तो वहां से ऑफ ट्रैकिंग भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर ए न्यू हॉरिजॉन्टल हाईवे टू बी अलाइंड अलोंग ए रोलिंग टेरेन विद ए रूलिंग मिनिमम रेडियस। रूलिंग मिनिमम रेडियस आपको यहाँ पे
रेडियस नहीं दिया हुआ निकालना होगा। और यहाँ पे आपको जो है टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट निकालना है पूरे हॉरिजॉन्टल। नेशनल हाईवे के लिए जो आपका जो है स्पीड की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 100 किलोमीटर पर आवर। सो 100 किलोमीटर पर। सो यहाँ पे जो है आपका जो बोला जा रहा है कि डाटा आपको खुद से एज्यूम करना है और रेडियस जो है वो रूलिंग मीडियम है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर नेशनल हाईवे प्लेन अगर है आपका प्लेन टेरेन में जो वेलोसिटी जो होगी दैट इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। 100 जो होगा आपका 100 किलोमीटर पर आवर से होगा। और फिर रोलिंग टेरेन के लिए फॉर नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे रोलिंग टेरेन के लिए v की वैल्यू जो होगी वो 80 किलोमीटर पर आवर होता है। ये दिया रहता है आपको कि हाँ इतना लेना है। अब सबसे पहले तो आप रेडियस निकाल लो, बिकॉज हमें एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालनी है। तो सबसे पहले तो रेडियस निकाल लीजिए और इस रेडियस निकालने के लिए क्या होगा तो रूलिंग आपको मिनिमम निकालना है। तो r अभी हमने आज ही डिस्कस किया है कि रूलिंग मिनिमम कैसे निकालेंगे। तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई e प्लस एफ इंटू जी, बिकॉज e प्लस एफ इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई जी आर। तो यहां से रूलिंग मिनिमम रेडियस क्या हो जाएगा तो v को आप पहले तो निकाल लो। तो v जो है आपका रोलिंग टेरेन है यहाँ पे तो 80 किलोमीटर पर आवर हम लोग लेंगे। तो 80 डिवाइडेड बाई 3.6, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 22.22 मीटर पर सेकेंड। सो 22.22 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू 0.07 प्लस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.15 इंटू 9.81। सो यहां से आपका जो वैल्यू हो जाएगा आर रूलिंग दैट इज इक्वल टू ये वैल्यू जो हो गया आपका 22.22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.07 प्लस 0.15 इंटू 9.81। ये वैल्यू जो हो गया 228.7 लेटेस्ट से कि 229 मीटर आपका रूलिंग मिनिमम रेडियस हो गया। अब हमको क्या निकालना है। सो मैकेनिकल वाइडनिंग और साइकोलॉजिकल वाइडनिंग NL स्क्वायर बाई 2R और लेंथ ऑफ व्हील बेस आपको एज्यूम करना है, बिकॉज सारा जो तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हील बेस ले लिया लेटेस्ट से 6 मीटर। फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ, तो जो है आपका यहाँ पे और यहाँ पे जो विड्थ जो हमने ले लिया कि 2 लेन हमने एज्यूम कर लिया। सो जो लेंथ जो है हमने विड्थ ऑफ द पेवमेंट जो एज्यूम कर लिया है 7 मीटर। सो विड्थ ऑफ पेवमेंट इज 7 मीटर। सो नंबर ऑफ लेन कितनी हो जाएगी 2। सो यहां से एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो हो जाएगा वो NL स्क्वायर मैकेनिकल वाइडनिंग NL स्क्वायर बाई 2R प्लस कैपिटल V बाई 9.5 स्क्वायर रूट ऑफ R। n की वैल्यू 2 इंटू 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूलिंग मिनिमम रेडियस भी हमने निकाल लिया है। कितना था रूलिंग मिनिमम रेडियस। सो वो है आपका 229। सो 229 प्लस v 80 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 229। सो यहां से वैल्यू जो आ जाएगी एक्स्ट्रा वाइडनिंग 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 229 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू 229। So this value is 0.71. So this value is 0.7136 meter. This is the extra widening. Last question of the session. Calculate the length of transition curve using the following data. डिजाइन स्पीड आपकी दी हुई है 65 किलोमीटर पर आवर। रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व इज 220 मीटर। अलाउएबल रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन। पेवमेंट रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन 1 in 150। पेवमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज 7.5 मीटर। सो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालना है। तो पहला तो हम लोग 3 कंडीशन से निकालेंगे। पहला बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इससे हम जो निकाले थे LS इज इक्वल टू BQ बाई
सी इंटू आर, वेयर वी जो है वो मीटर पर सेकेंड में। सो वी जो है सबसे पहले तो हम लोग स्मॉल वी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज कर लो, तो कितना हो गया 65 डिवाइडेड बाई 3.6। सो ये वैल्यू जो आ गई 18.06 मीटर पर सेकेंड। अब c की वैल्यू निकाल लो, तो c इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v। अब यहाँ पे v जो है वो किलोमीटर पर आवर में होगा, 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस v 65। तो ये कितनी हो गई 80 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 65, ये वैल्यू जो हो गई 0.57 और इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0.5 टू 0.8 के बीच में। हाँ सही है, ओके, ये भी वैल्यूज ठीक है, हमने देख लिया। सो यहाँ से फिर है जो हम लोग जो है पहले तो निकाल लेते हैं, v जो है हमारी कितनी है 18.06। सो 18.06 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई c 0.57 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर इज गिवन 220 मीटर। सो 220, आर इज 220 मीटर। सो यहां से वैल्यू जो आ गई लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की 18.06 स्क्वायर सॉरी क्यूब 18.06 to the power 3 VQ divided by C 0.57 into 220। तो ये वैल्यू जो आ गई 46.97, कितना आ गया 46.97, इसकी वैल्यू जो आ गई 46.97 मीटर। अब दूसरा क्राइटेरिया जो है कि क्या है, बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सो पेमेंट जो है वो रोटेट किया गया है अबाउट द सेंटर। सो एल एस क्या हो जाएगा हमारा E इंटू कैपिटल N इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 2। अब जो है आपका W प्लस डब्ल्यू ई जो इंक्लूडिंग दे दिया है, पेमेंट विथ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज 7.5 मीटर, 7.5 मीटर मालूम है। E की वैल्यू आपको निकालना होगा, N की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 150, N की वैल्यू जो है 150 है, तो यहाँ पे E आपको निकालना होगा। तो अभी फिर उसी तरह आप निकालो जैसे निकालते थे। तो E की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहला स्टेप में कि 0.75 इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू आर, डिजाइन करना होगा आपको यहाँ से। तो 0.75 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 18.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 220। यहाँ पे देखो ई की वैल्यू परमिसिबल आ रही कि नहीं, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.75 इंटू 18.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू आर, ये वैल्यू आ गई 0.085 जो कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो गया, ई मैक्स मतलब 0.07 से, नॉट ओके। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, स्टेप की आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई लेके जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू 0.07 होगा, आप एफ की वैल्यू को निकाल के देखो और वो 0.15 से कम है कि नहीं। तो एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर माइनस 0.07। यहां से आप देखो एफ की वैल्यू चेक करिए, अगर एफ की वैल्यू 0.15 से कम होगी तो हम 0.07 लेके ही डिजाइन कर देंगे। सो वी स्क्वायर, सो वी कितनी है 18.06 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 220 माइनस 0.07। सो देखो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 18.06 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 220 माइनस 0.07। सो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी, एफ की वैल्यू जो आ रही है वो 0.08 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0.15। ओके, प्रोवाइड E इज इक्वल टू 0.07। आपको यही लेके आपको डिजाइन करना है, तो 0.07 लेकर ही। तो यहां से क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व E इंटू एन इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई डिवाइडेड बाई 2। E की वैल्यू तो 0.07 है, so it can be computed the value of E can be जब आप लोगे 0.07 तो E की वैल्यू कैन बी कंप्यूटेड एज इट इज 0.07 इंटू 150 इंटू 7.5 मीटर जो है टोटल विड्थ है इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी 0.07 इंटू 150 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 2।
सो इट इज 39 मीटर, 39.4 मीटर। ये दूसरा से आया। तीसरा हमारा जो क्या है, एम्पिरिकल इक्वेशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो फॉर प्लेन, यहां पे प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है। सो फॉर प्लेन या रोलिंग टेरेन के लिए, रोलिंग टेरेन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एल एस इज इक्वल टू, एल एस की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 2.7 कैपिटल वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ही रखना है। सो 2.7 यहाँ पे इंटू वी, वी की वैल्यू जो है वो कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर। सो 2.7 इंटू 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 220। सो 220, तो यहां से आ गया आपका वैल्यू 2.7 इंटू 65 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 220। सो ये वैल्यू आ गई 51.85 मीटर, मतलब 52 मीटर। अब जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा वो क्या, मैक्सिमम वैल्यू हमें लेना है इन तीनों में से। सो मैक्सिमम ऑफ कौन कौन सा आया था, मैक्सिमम ऑफ पहला वैल्यू जो है 46.97, दूसरी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, तो वो है आपका 39.4। सो 39.4 मीटर, और तीसरा जो है वो 52 मीटर। मतलब इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होगा। सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एल एस इज इक्वल टू 52 मीटर, यही हमारा वैल्यू होगा।